गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप सब लोग नर्वस हो, आपका आवाज़ नहीं आ रही है। प्लीज लाउडली, वी आर यंग राइट। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'd like to say a big thank you to the Karnavati University for inviting us as a guest speaker. This is the second time. Before 2 years back, I was here as a guest speaker. So let's start with the session. But before starting this, I would like to ask one question to all of you. Shall I ask? Yeah, how many of you know about the Dabbawalas? Oh my God, almost 95%, right? But can anyone explain what exactly we are doing in Mumbai? What we are doing within a single word? What exactly the Dabbawalas? Please raise your hand. Yes. Logistic management. Okay. From this side. Yes. Delivering food from home to offices, right? Yes. Okay. Yes, ma'am. And one more. Yes. There was a startup made by some 13 or 14-year-old kid in which you had helped him. It was again related to delivering things. With food, you were also delivering parcels. That Okay. online service something. I don't know much about it, but that too. Yeah, sure. I will cover it. From this side, backbenchers. आपको किसी को नहीं पता डब्बावालास क्या करते हैं एग्जैक्टली मुंबई में? या घर से टिफिन लेके ऑफिस में डिलीवर करने का काम डब्बावालास करते, राइट? बट व्हाट हैपन, most the people they are thinking कि डब्बावाला is a catering services. It means we are cooking our own food and we are delivering it to our customer. मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि डब्बावाला खुद खाना बनाते हैं, खुद का उनका किचन है, वो किचन से उनके कस्टमर को डब्बा देने का काम डब्बावालास करते हैं, राइट? बट दैट इज नॉट डब्बावाला. सो डब्बावाला मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? We are collecting your lunchbox from your home and we deliver your lunchbox at your office before 1 o'clock. Before 1 o'clock. Why? 1 बजे से पहले क्यों? Because 1 o'clock is the ideal lunch time of Mumbaikars. मुंबई में ज़्यादातर 1 बजे का ही lunch time होता है. So this is our target to deliver your lunchbox at your office before 1 o'clock. So this is a basically Dabbawala system. So our definition is collection and distribution of lunchboxes, But our president said, this is not our definition. So उनका कहना है कि collection and distribution of lunch boxes with the care of customer. Customer care is very important for us. Customer care करना ये हमारी सबसे बड़ी important चीज़ है जो हमें follow करनी है, जो हमें करनी रहती है. तो उसी को follow करते हैं ज़्यादातर डब्बावालास. You can see here in this slide, Mumbai, Dabba and Wala. There are 3 words. So here we are using Mumbai. Right. So why we are using Mumbai here? Because we provide this service only in Mumbai, not in other cities as well as not in other countries. So because of that we are using Mumbai here. Dabba and Wala. So Dabba means a lunch box and Wala means a person who carry this lunch box. It's come togetherly Mumbai Dabba Wala. So there are some words in Hindi language. Pani Puri Wala, Lokhand Wala, right? Lokhand Wala is selling Lokhand. Pani Puri Wala is selling Pani Puri. But we Dabbawalas are not selling Dabba. We provide only delivery services to our customer. So you can see here, it's only by helping each other you can achieve a goal. This is the tagline of Dabbawalas. It's only by helping each other you can achieve a goal. It means what? It means group activity. एक दूसरे की सहायता करो, आप अपना गोल अचीव कर सकते हो. ये मतलब बेसिक उसका मीनिंग है. इसको मराठी में कहते हैं कि एक में का सहाय्य करो अवगे धरू सुपंथ. सुपंथ मीन्स द गोल, टारगेट. तो एक दूसरे की सहायता, दैट इज अ टीम वर्क, राइट? सो टीम वर्क के साथ अगर काम करते हो तो आपका गोल आप खुद अचीव कर सकते हो. यही डब्बावालास का कहना है और उसी के लिए ये उनको फॉलो करते हैं. सो दिस सेंटेंस इज अ सेड बाय द गॉड. ये गॉड ने कहा है, किसी डब्बावालास ने नहीं. तो डब्बावालास उसे फॉलो करते हैं. It's not working properly. So because of that we never use any type of technologies in our service, because technology always be a barrier, because 100% dependence on technology. अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से 100% डिपेंड हो गए तो बिजनेस तो नहीं चला पाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट डब्बावालास ने अभी तक आज तक 130 सालों में कभी भी किसी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है.
So let's come to the point. Before 130 years back, the system was started. Can you imagine? 130 साल पहले ये सर्विस मुंबई में स्टार्ट की गई थी. So how the system was started? Mr. Mahadeo Hauji Bache, he was started this system in Mumbai, in Colaba city. Mumbai was divided into the 7 islands. वो टाइम इन मुंबई मतलब मुंबई में वो टाइम 7 आइलैंड्स थे. तो 7 आइलैंड्स में कुलाबा जो आइलैंड था वहाँ पर हमारे फाउंडर एज ऑफिस बॉय पारसी लोगों के साथ काम करते थे उनके ऑफिसेस में. सो एक दिन क्या हुआ कि एक पारसी बैंकर्स, उनको मोस्टली पारसी बैंकर्स ही कहा करते थे, तो जो पारसी बैंकर्स थे उन्होंने हमारे फाउंडर से कहा, सर कैन यू प्लीज डिलीवर माई लंच बॉक्स टू मी एट माई ऑफिस बिकॉज आई एम गेटिंग लेट टू रीच बट स्टिल लंच इज नॉट रेडी. सो आवर फाउंडर सेड, why not, I can deliver it because I am going to killing the hunger of someone, right? I am going to killing the hunger of someone, so I can do it. So he started with the one customer, one lunch box, one dabba wala. Now imagine today we have more than 5,000 employees in our service and we daily deliver 200,000 plus lunch boxes. So this is the strength of dabba wala. So this is the little bit information for your attention. We have started in 1890. We registered this service under Bombay Public Trust Act in 1956. Total we have 5,000 employees and we daily deliver 200,000 lunch box. It means we are doing 4 lakh transaction every day. How? From your home to your office, that is the first transaction for you. After our lunch, we again picked your empty lunch box from your office and we again deliver it back to you at your home. So for one customer, we are doing 2 transactions. So 2 lakh customer, we are doing 4 lakh transaction every day. So you all know about the Swiggy, Zomato, Flipkart, Amazon's, online food deliveries, online e-commerce companies, right? So e-commerce companies, they take 7 to 8 days for one delivery, right? अब अगर पार्सल ऑर्डर करते हो तो आपका पार्सल आपको 3, ज़्यादातर देखिए मुंबई में हो गए तो 2 दिन में आ जाता है, बट इन अदर सिटीज़ आपको 3 या 4-5 दिन लग जाते हैं एक पार्सल आपके घर तक आने के लिए, राइट? अगर आपने मुंबई से ही ऑर्डर किया होगा तभी भी आपको 7 डेज लग जाते हैं, राइट? स्विगी एंड जोमेटो मतलब जो फूड डिलीवरीज कंपनी है वो 30 मिनट्स में आपको डिलीवरी देते हैं, बट विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ओनली. 5 किलोमीटर से ज़्यादा वो नहीं भाग पाएंगे. बट हमारे डब्बा वाला सी दे आर यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई एजुकेटेड पीपल, राइट? High mega structure, infrastructure, paper, plastic, private vehicle, each and everything they are using, but still they are unsuccessful to provide like a same day delivery, right? मुंबई में आज तक मतलब मुंबई में बहुत सारी कुरियर कंपनीज है जो सेम डेज डिलीवरीज देने के लिए आज भी मैनेजमेंट को चेंजेस कर रही है, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव ला रही है, बट स्टिल दे आर अनसक्सेसफुल. वो सेम डे डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं. सी बट वी डब्बा वालास वी आर डूइंग 4 lakh transaction, 2 transaction for one customer every day. So within 4 hours we do first transaction from in the morning after 9 o'clock to in between 1 o'clock. Okay. So within the 4 hours we deliver your parcel without using any technology, without paper, without plastic, without educated people, without private vehicle and without higher technology. Can you imagine how is it possible? How is it possible without paper and plastic? Technology तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, राइट? 1980 के बाद टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हुई, बट उससे पहले तो पेपर और प्लास्टिक तो नॉर्मल चीज़ है. अभी अगर कोई भी बिजनेस करना होगा तो पेपर का मोस्टली यूज़ किया ही जाता है, राइट? कितना भी कुछ भी करो लेकिन पेपर का और प्लास्टिक का यूज़ होता ही है, बट डब्बा वालाज में पेपर का भी यूज़ नहीं किया जाता है. सो विदाउट पेपर कैसे काम होता होगा? और वो भी 4 घंटों के भीतर 2 लाख डिलीवरीज 5,000 डब्बा वालाज कर भी देते हैं विद इन 70 to 80 किलोमीटर्स. 70 to 80 किलोमीटर्स को कवर करते हैं मुंबई में टोटल. यू कैन सी टोटल वी कवर्ड 60 to 70 किलोमीटर एरिया. एंड एजुकेशन 80% ऑफ आवर डब्बा वालास मतलब 80% से ज़्यादा डब्बा वालास वो सेमी लिटरेड है. कोई 4th तक पढ़े हैं, कोई 6th, कोई 7th, मोस्टली 10th तक पढ़े हैं ज़्यादातर लोग. 10 से ज़्यादा कोई डब्बा वाला ज़्यादातर पढ़े हुए नहीं है, और उसमें से भी 80% दे आर इलिटरेट मतलब उन्होंने कोई भी टाइप की क्लासेस नहीं की है. ओके. सो देर इज वन क्वेश्चन इन योर माइंड कि डब्बा वाला मुंबई में ही क्यों, राइट? डब्बा वाला मुंबई में ही क्यों काम करते हैं? वाई दे आर नॉट स्टार्टिंग देयर बिजनेस इन अदर सिटीज, इन अदर कंट्रीज? सी हियर इज अ बिग रीजन, बिकॉज ऑफ द सिटी स्ट्रक्चर.
मुंबई की जो सिटी है ये वेरी यूनिक है. यहाँ पर दो पार्ट है, एक रेजिडेंशियल पार्ट और एक कॉर्पोरेट पार्ट. So basically we have 3 residential part in Mumbai and 1 corporate part. So you can see here on the top. So this is the Vasai Virar area first. Second one that is the Kalyan Dombivli, and third one that is the New Bombay. So these are the 3 residential part. So what we are doing, we are collecting the lunch boxes from the residents and we are delivering it in the corporates. So we travel from Virar to Churchgate, it's around 70 kilometer. Then Kalyan Dombivli to CST, it's around 65, and from New Bombay to CST, it's around like 62 to 67 किलोमीटर. सो बेसिकली ये डब्बा वालस का ट्रैवलिंग होता है. ये जो तीनों रेसिडेंशियल पार्ट है, ये कॉर्पोरेट पार्ट को कनेक्ट किया गया है लोकल ट्रेन से. सो मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, दिस इज द बैकबोन ऑफ मुंबईकर्स. अगर लोकल ट्रेन नहीं चलती है तो मुंबई रुक जाती है, लोकल ट्रेन चलती है तो मुंबई नॉर्मल हो जाती है. सो टोटली मोर देन 80% पीपल आर दे आर डिपेंडिंग ऑन द लोकल ट्रेन. सो मुंबई की लोकल ट्रेन का शुरू होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. तो डब्बा वालास भी लोकल ट्रेन का ही मोस्टली यूज़ करते हैं और वो अपना डब्बा डिलीवर करने का काम करते हैं. यू कैन सी हियर इन द मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द डब्बा वालास दे यूज बाइसिकल्स टू कलेक्ट द लंच बॉक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड्स. After that, they use local train. For the long journey, long distance. And finally, they use hand car, hath gadi, for final delivery. You can see here, there is no any fuel consumption vehicle, right? Train is also running on electricity. So no fuel consumption vehicle, no paper, no plastic. It means no pollution. Even we are not using technology, no mobile phone. So it means no radiation. So no radiation, no pollution. Our total business is eco-friendly. So ये था आपके दिमाग में ये सवाल था कि डब्बा वालास मुंबई में ही क्यों काम करते हैं. So एक और भी एक कॉमन सवाल होता है और एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि why people hire डब्बा वालास. डब्बा वालास को लोग क्यों हायर करते हैं? Because I can carry my lunch box with me, right? आप भी खुद का लंच बॉक्स आप खुद कैरी करते हो, राइट? बट मुंबई में ऐसे क्या है कि लोग डब्बा वालों को हायर करते हैं लंच बॉक्स कैरी करने के लिए. यू कैन सी हियर बिकॉज मुंबई इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डेंजरस सिटी, जिनको हम माया नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स, राइट? तो यहाँ पर इतने लोग आते हैं. सो द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 3 करोड़. अगर ये 3 रेसिडेंशियल पार्ट और कॉर्पोरेट पार्ट का अगर पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 3.8 करोड़ के लगभग मुंबई का पॉपुलेशन है. एवरी डे 2 करोड़ लोग इस लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं. 2 करोड़ लोग मतलब पूरे ऑल ओवर मुंबई और मुंबई सबअब, जिसको हम MMR रीजन कहते हैं. सो वाई पीपल हायर डब्बा वालास? लेट्स सी. यू कैन सी. ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग डब्बा वालास को क्यों हायर करते हैं. सी ये क्राउडेड लोकल ट्रेन, जब ये लोकल ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आती है तो 10 सेकेंड से ज्यादा रुकती नहीं है, राइट? सो इफ यू वांट टू गेट डाउन ओवर देयर देन यू शुड गेट डाउन विद इन द 5 सेकेंड, यू शुड बोर्ड द ट्रेन विद इन द 5 सेकेंड्स. तो 5 सेकेंड आपके पास होते हैं और 5 सेकेंड के भीतर आपको ट्रेन में चढ़ना होता है. और 5 सेकेंड में चढ़ने वाले ऐसे आप अकेले नहीं, ऐसे मोर देन 4 से 5,000 लोग होते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. सो हर एक 3 मिनट के बाद एक लोकल ट्रेन आती है, हर एक 3 मिनट के बाद. अगर बोरिवली, अगर अंधेरी, ये जो बिग स्टेशन है, बड़े स्टेशन है, यहाँ पर तो हर एक 1.5 मिनट के बाद एक लोकल ट्रेन आती है. तभी भी हर एक ट्रेन से 4 से 5,000 लोग ट्रैवल करते हैं. सो सोचिए एक 1.5 मिनट में इतने 4-5 लोग आते कहाँ से एक प्लेटफॉर्म पर? ये तो एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है. सो विद इन सेकेंड लोगों की गर्दी हो जाती है, भीड़ हो जाती है और विद इन सेकेंड पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है. सो इन दिस क्राउडेड लोकल ट्रेन, सी ये तो फर्स्ट क्लास है. यू कैन सी हियर वो तो फर्स्ट क्लास था. अगर फर्स्ट क्लास लंच मतलब कंपार्टमेंट की अगर ये हालत है, सो कैन इमेजिन, कैन यू कैरी योर लंच बॉक्स विथ यू? यू कैन नॉट कैरी, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल हायर डब्बा वालास. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज यू आर इंडियन, वी आर इंडियन. सो वी लाइक होम कुक फूड. हमें घर का खाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. कितने भी 5 स्टार होटल आने दो, कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट आने दो, बट हम 2 या 3 दिनों के बाद बाहर का खाना पसंद नहीं करते. सो हमको घर का ही खाना सबसे अच्छा लगता है. और हमारे लिए घर का खाना अच्छा बनाने के लिए सिर्फ 2 ही लोग हैं, योर मदर और योर
वाइफ, ये दो लोग ही अच्छा खाना बना सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल हायर डब्बावालास टू कैरी देयर लंच बॉक्स फ्रॉम देयर होम. ओके, so mostly we 5,000 dabbawalas are come from single background. We all are from Maharashtra, from Maratha community. So हम सभी डब्बावालास मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. फ्रॉम पुणे, मोस्टली 99% डब्बावालास आर फ्रॉम पुणे. पुणे ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पुणे में टोटल 13 तहसील्स है. 13 में से 9 तहसील से पूरे डब्बावालास बिलोंग करते हैं. सो बेसिकली ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. सो डब्बावालास की जो कम्युनिकेशंस होती है, ये कम्युनिटी की वजह से होती है. आई सेड कि वी आर नॉट यूजिंग पेपर, सो हाउ दे आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर, राइट. तो बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ द मराठा कम्युनिटी, बिकॉज डब्बावालास को उनके कम्युनिटी से ही सिखाया गया है कि सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड. सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड. सर्विंग पीपल मीन्स हु एग्जैक्टली? सर्विंग पीपल मीन्स आर कस्टमर. आर कस्टमर इज अ गॉड फॉर अस. कस्टमर ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है. कस्टमर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. दिस इज अ गॉड फॉर अस. सो गॉड के लिए 100% डेडिकेशन आपको देना, मतलब देना ही है. क्योंकि डेडिकेशन अगर आप नहीं देते हो 100%, तो आप 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे. सो 100% डेडिकेशन के लिए आपको 100% अपने गॉड को विश्वास, अपने कस्टमर को सर्विस देनी है. सो ऑल वी 5,000 डब्बावालास आर बिलोंग फ्रॉम वारकरी सेक्ट. मोस्टली वारकरी सेक्ट से ही आते हैं. जो मराठा कम्युनिटी है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पर ज़्यादातर विश्वास लगते हैं, जिनको भगवान प्यारे है, उनको हम कहते हैं वारकरी लोग. जो भगवान को राइट मानते हैं, उनके लिए वो सब मोस्टली पिलिग्रिम्स होते हैं. तो जो वारकरी सेक्ट है, वहीं से 99% डब्बावालास वो वारकरी सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं. और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा, राइट. छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन 16th century. On that time, he killing the terrorists and he rescued the people, right? But today, we all are from same community. हम छत्रपति शिवाजी महाराज के कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं. So today there is no any terrorism. So but today we are doing same work. We are killing the hunger of people and we rescue them. Same community, same work. Today we are doing. So we all know, अगर हमें कोई भी बिजनेस चलाना है, अगर हमें कोई भी मैनेजमेंट करना है, सो वी नीड वन मैनेजरल स्ट्रक्चर टू मैनेज द बिजनेस, राइट. अगर वो मैनेजरल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें HR होता है, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, राइट. बट वी डब्बावालास, वी डोंट हैव एनी R&D डिपार्टमेंट, नो मार्केटिंग, नो फाइनेंस, नो HR. कोई भी टाइप के डिपार्टमेंट हमारे डब्बावालास में फॉलो नहीं होते. सो हमारे डब्बावालास का स्ट्रक्चर ही कुछ अलग है. एक्चुअली वी हैव 2 स्ट्रक्चर हियर. सो बेसिकली बिजनेस में 2 ही पार्ट होते हैं. फर्स्ट, दैट इज द इंटरनल पार्ट एंड एक्सटर्नल पार्ट, राइट. इंटरनल डिसीजंस एंड एक्सटर्नल डिसीजंस. सो बिकॉज ऑफ दैट वी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. फर्स्ट, दैट इज नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई चैरिटी ट्रस्ट. दिस इज आवर एक्सटर्नल पार्ट एंड दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर. एंड इंटरनल, मुंबई जेवण डब्बे वाहतूक मंडल, दैट इज मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन. तो यहाँ पर देखिए आप, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है और ये हॉरिजॉन्टल. सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस होता है? वर्टिकल स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर में सिंगल पर्सन दे कैनॉट फाइनलाइज द डिसीजंस. एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन, ही कैनॉट फाइनलाइज हिज डिसीजंस, राइट. बट इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर कोई भी अपना डिसीजंस कभी भी, किसी भी समय, कहीं पर भी फाइनल कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे 5,000 डब्बावालास दे कम्स अंडर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर. सो हमारा जो मोस्टली वर्टिकल स्ट्रक्चर है, उनके डिसीजंस, मतलब बिग डिसीजंस अगर होते हैं रिगार्डिंग एक्सपांशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, अगर किसी सिटीज़ में अगर कोई हेल्प करनी है, कोई चैरिटी करनी है, तो हमारे ट्रस्ट के थ्रू वो डिसीजंस फाइनल किए जाते हैं. और जो हमारे इंटरनल डिसीजंस हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, देन हायरिंग प्रोसेस, उनको पेमेंट करना, वो टोटली मैनेजमेंट हमारे एसोसिएशन के थ्रू किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंडर. हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंडर हमारे प्रेसिडेंट्स के राइट्स अलग है और हमारे डब्बावालास के राइट्स अलग है. हर एक को फ्रीडम यहाँ पर दी गई है. यहाँ पर किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शन देने वाला बंदा नहीं है. मोस्टली कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपके ऊपर अपना एक बॉस होता है, आपका रीजनल हेड होता है, राइट. आपका मैनेजर होता है, डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद ही आप काम करते हो, राइट.
बट डब्बा वाला के केस में ऐसे नहीं होता। डब्बा वाला के केस में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा होता है, दैट इज द सुपरवाइजर। हम उसे मुकादम कहते हैं। मुकादम इज अ मराठी वर्ड बट इन इंग्लिश इट्स अ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को एक ही काम होता है कि डब्बा वालों को सिर्फ डायरेक्शन देना, उनको काम करने का तरीका उनको पता होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना, बिकॉज टू कॉन्टैक्ट ईच अदर। वो हमारा जो सुपरवाइजर होता है वो सुपरवाइजर मोस्टली 10th तक पढ़ा होता है, ताकि उनको ट्रेन का टाइमिंग या फिर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना वो मोस्टली उनका काम होता है। तो वो मोस्टली वो मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर दो ही स्ट्रक्चर में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मोस्टली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, देन डायरेक्टर्स। सो प्रेसिडेंट, so Ulaji along with me today here, Mr. Ulaji is the president of our trust. So big decisions जो भी होते हैं, बड़े बड़े decisions हमारे ट्रस्ट के हमारे उलाजी वो फाइनल करते हैं। So basically this is a structure, but we said कि this is a stretcher for us. This is a stretcher. If stretcher is strong then patient goes to bed, right? अगर stretcher strong होगा तो patient बेड पे जा सकता है। तो इसी के लिए ये हमारे लिए स्ट्रक्चर नहीं, ये हमारा स्ट्रेचर है। अगर हमारी ये स्ट्रेचर, अगर हमारी मैनेजिंग कमेटी अगर ठीक नहीं होगी तो हमारा कस्टमर को डब्बा कभी भी टाइम पर डिलीवर नहीं होगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर, हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, इट शुड बी गुड। सो दिस इज द मेन पार्ट। हाउ डू दे डू इट? हाउ 5000 डब्बा वाला दे डिलीवर मोर देन 2 lakh lunch boxes within 4 hours, right? So see, exemplary performance is possible when and only when external excellence program such as a Six Sigma go hand in hand with high level of internal excellence. So internal excellence, this is a new word for all. Internal excellence and external excellence. So internal and external, there are two excellence. External excellence means what exactly? आप जो भी चीज़ आपके बिजनेस में यूज़ करते हैं, आप जो भी चीज़ आपके बिजनेस में यूज़ करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट होगा, टेक्नोलॉजी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ भी जो भी चीज़ आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल पार्ट, राइट? बट इंटरनल पार्ट, इट मीन्स योर इंटरनल थिंकिंग पावर, योर डेडिकेशन लेवल, योर सेटिस्फैक्शन लेवल, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 100% डेडिकेशन नहीं दे पाओगे। अगर आप 100% डेडिकेशन नहीं दोगे तो आप बिजनेस में लॉस तो होना ही है, बट आपका बिजनेस 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। सो योर इंटरनल एक्सेलेंस शुड बी मोर देन 90%। आपका इंटरनल एक्सेलेंस होना चाहिए, उसकी लेवल 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपका एक्सटर्नल एक्सेलेंस मीन्स आप जो भी चीज़ आपके बिजनेस में यूज़ करते हो उसकी भी लेवल मोर देन 99% अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो आप अभी मॉडर्न टाइम, आप मॉडर्न कुछ चीज़ आप टेक्नोलॉजीज आज बिजनेस में यूज़ करते हो और आप 1950 की अगर कोई कार यूज़ करोगे तो वो तो नहीं चलेगा, राइट? अगर आपका स्ट्रक्चर, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होगी तो आप भी आपके बिजनेस में तकलीफें आएगी, राइट? तो इट शुड बी मोर देन 90%, वो परफेक्ट होना चाहिए। सो बोथ द थिंग शुड बी मोर देन 90%. So here is a case study. Dr. Pradeep Deshpande, he is the president of Six Sigma and Advanced Control. So he did the case study on डब्बा वालास कि डब्बा वालास को 100% डेडिकेशन आता कहाँ से, डब्बा वालास 100% डेडिकेशन देते कहाँ से, राइट? किसी भी कंपनीज में अगर हम लोग को, हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर डेडिकेशन लाना है, उनको एक मतलब उनको थोड़ा पुश करना है, उनको अच्छे से मोटिवेट करना है, तो हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के या फिर अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उन्हें मोटिवेट करने का सेशन रखते हैं, राइट? वो ट्राई करते हैं। बट डब्बा वालास में ऐसे कोई सेशंस या फिर ऐसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं आते हैं, तो डब्बा वालास कैसे मोटिवेट हो जाते हैं? तो यहाँ पर अगर बात आती है भक्ति की, भक्ति मीन्स पिलग्रिम्स। डब्बा वालास जो मोस्टली डब्बा वालास उनके गॉड पर ज़्यादातर विश्वास रखते हैं, राइट? तो इंटरनल एक्सीलेंस लेवल डब्बा वालास की हाई क्यों मानी जाती है? बिकॉज ऑफ देयर भक्ति पावर। भक्ति मीन्स भगवान का कहना यही है कि सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड। लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करना यही हमारा धर्म है, यही हम लोग सोचते हैं, ऐसे डब्बा वालास की सोच है। तो यही है डेडिकेशन पावर। अभी नॉर्मली डेडिकेशन मतलब इंटरनल एक्सेलेंस का एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा तो आपको 100% समझ में आएगा कि इंटरनल एक्सेलेंस अगर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? एक नॉर्मली जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, राइट, नॉर्मल पीपल जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर एक फल और फूल बेचने वाला एक बंदा होता है, राइट?
तो वो बंदा वहां से जाता है तो सोचता है कि चलो भगवान को हम फूल या फिर फल चढ़ाते हैं। तो जो भी वो बंदा फूल या फल लेने जाता है, राइट, तो वो फल बेचने वाला बंदा उसे कुछ सड़े हुए फूल या फल दे देता है। तो बंदा वो फल फूल नहीं लेता है, वो बंदा वो फल फूल नहीं लेता है, वो बोलता है कि मुझे अच्छे चाहिए। बट वो फल बेचने वाला बंदा कहता है कि सर ये तो आपको भगवान को ही तो चढ़ाना है, कोई खाने वाला तो नहीं है, राइट, कोई खाने वाला बंदा यहाँ पर नहीं है, आपको तो नॉर्मली भगवान को ही ये चढ़ावा देना है। तो बट वो बंदा क्या सोचता है कि ये फल और फूल मैं भगवान को देने जा रहा हूँ, भगवान को चढ़ावा देने जा रहा हूँ, अगर कोई भी चीज में मेरी थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो भगवान मेरे पे नाराज हो जाएंगे। हर एक की सोच ऐसी होती है, राइट। अगर मैं भगवान के रिगार्डिंग कुछ भी वर्क करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, तो वो काम सही होना चाहिए, हम दिल से सोचते हैं, राइट। तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाई करने के लिए तैयार होता है, राइट। तो वही जो सैक्रिफाइशन है ना, वही डब्बा वाला आज अपने कस्टमर को डब्बा डिलीवर करने के लिए लगा देते हैं। सो कितनी भी बारिश आने दो, कितनी भी धूप आने दो, कितनी भी बाढ़ आने दो, जब तक कमर तक पानी नहीं आता है, जब तक लोकल ट्रेन स्टॉप नहीं होती, तब तक डब्बा वाला डब्बा डिलीवर करने का काम करता ही है। सो 2 साल पहले ऐसी एक सिचुएशन आई थी, 2 साल पहले ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि एक कस्टमर था, उन्होंने अपना लंच बॉक्स वडाला से उनको अंधेरी भेजना था, सॉरी जोगेश्वरी भेजना था, वडाला से जोगेश्वरी। तो डब्बा वाला उनके घर में जाते थे 9:30 के बाद, मॉर्निंग में 9:30 के बाद उनके घर में डब्बा पिक करने के लिए जाते थे। तो वो जो कस्टमर थे वो सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाते थे अपने ऑफिस में जाने के लिए, सुबह 8 बजे ही। बट डब्बा वालास का जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, डब्बा वालास का कैसा है कि एक डब्बा वाला जो आपके घर से डब्बा पिक करता है बंदा, वो लास्ट फाइनल डिलीवरी के लिए वो बंदा नहीं रहेगा, वो एक ही लंच बॉक्स 3-4 डब्बा वालास के मतलब वो हैंड ओवर हो जाएगा। तो वो जो बंदा था उसे ऑफिस पहुंचने के लिए दोपहर के 12 बजे, सुबह 8 बजे घर से निकले थे, बाढ़ की वजह से, ट्रेन स्टॉप होने की वजह से वो वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। बट डब्बा वाला ने उनका लंच बॉक्स 9:45 बजे 9:45 को वो डब्बा पिक किया और 12:15 को वो डब्बा डिलीवर भी किया था। तो वो बंदा जब ऑफिस में पहुंचा तो डब्बा वाला उसको सामने दिखा उसके साथ लंच बॉक्स के साथ, तो उसने सोचा कि यही है डेडिकेशन लेवल, कि मैं खुद विदाउट कुछ लेके मैं अकेला ही आ रहा हूँ, तभी भी मुझे इतनी दिक्कतें आ रही है मुंबई में ट्रैवलिंग करने के लिए। बट डब्बा वाला वो खुद 40 कस्टमर के 40 लंच बॉक्सेस वो खुद कैरी करता है, और लोकल ट्रेन में, साइकिल पे, हाथ गाड़ी पे, जैसे जो भी वाहन मिले उस वाहन का इस्तेमाल डब्बा वाला करते हैं और अपना काम करने का सोचते रहते हैं। सो प्रदीप देशपांडे ही कैलकुलेट दी फोटोनिक एनर्जी ऑफ डब्बा वालास। उन्होंने क्या किया कि एक मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो मशीन के थ्रू उन्होंने डब्बा वालास की फोटोनिक एनर्जी कैलकुलेट की। उन्होंने डब्बा वालास की 10 उंगलियां है, तो 10 उंगलियां से फोटोनिक एनर्जी कैलकुलेट की, तो वहां से उन्हें ये रिजल्ट मिला है, दैट इज दिस इज द इंटरनल एक्सीलेंस लेवल, कि डब्बा वालास में जो इंटरनल एक्सीलेंस लेवल है दिस इज 93%, 96, 92, 95, 96, मोर देन 90%। सो ये 90% से ज्यादा इंटरनल एक्सीलेंस लेवल है। सो सेम केस स्टडी उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के साथ भी की थी। कैंसर पेशेंट्स जो ज्यादातर टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में होते, राइट, तो उनकी ये जो लेवल है इंटरनल एक्सीलेंस लेवल, ये उनमें पाई गई बिलो 70%, बिलो 70%। और सेम केस स्टडी उन्होंने जब किसी कॉर्पोरेट में की, तो कॉर्पोरेट में ये जब स्टडी हो रही थी, तो वो कॉर्पोरेट में जो बंदे काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी जो इंटरनल एक्सीलेंस लेवल थी वो बिटवीन 75 से लेके 78 या 79 ज़्यादा से ज़्यादा। तो सोचिए, अगर इंटरनल एक्सीलेंस लेवल मतलब आपकी थिंकिंग पावर, आपका डेडिकेशन, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपनी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे ठीक से, क्योंकि ये आपकी सोच आपको किस तरह से डिज़ाइन, आप खुद को करनी है आपकी सोच डिज़ाइन। सोचिए, अगर कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में जॉब करता है, वो 8 घंटा अगर मतलब मोस्टली 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, राइट। सो 8 आवर्स के ज़्यादा अगर हमारा HR हमें रुकाता है कि 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा काम करना है आज के दिन, तो हम कंपनी के ऑपोजिट साइड में खड़े हो जाते हैं और कंपनी को गाली देना स्टार्ट करते, राइट, कि मुझे क्यों रुकाया है, मेरा 1 घंटा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी गई भाड़ में, लेकिन मेरा काम मुझे घर पे पहले जाना है। सो हम कंपनी के ऑपोजिट हो जाते हैं वो 1 घंटे की वजह से। बट यहाँ पर डब्बा वालास में ऐसे नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ अगर डिले हो जाती है तो डब्बा वालास को कभी कभी 12-12, 13-13, 14-14 घंटे भी काम करना पड़ता है, बिकॉज कुछ डब्बा वालास ऐसे हैं जो लंच भी डिलीवर करते हैं और रात में डिनर डिलीवरी का काम भी करते हैं। सो मॉर्निंग में जो डब्बा वाला सुबह 7 या 8 बजे घर से निकलता है, वो शाम को 9 बजे ही घर पे जाता है। तो ऐसे भी कुछ बंदे ये
So this is a Six Sigma Grandmaster certificate. So mostly Six Sigma certificate, जो defect level, normally Six Sigma means 1 to 3 defects in 1 million transactions, right? So this is a Six Sigma certificate. So ये है external part के लिए, आपके system के लिए Six Sigma. बट ये Six Sigma Grandmaster ये सर्टिफिकेट है आपके इंटरनल एक्सेलेंस लेवल के लिए. सो ये जो सर्टिफिकेट है ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डब्बावाला के पास ही है. आज तक ये सर्टिफिकेट किसी को दिया नहीं गया है. ये सर्टिफिकेट अभी नेक्स्ट देने जा रहे हैं लुइसविल यूनिवर्सिटी को, जो केंटकी में है, यूएस में. उनको ये सर्टिफिकेट जाने वाला है. और एमएमए मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन को ये सर्टिफिकेट नेक्स्ट ईयर ये देने वाले हैं. So here we can understand exemplary performance is possible when high internal excellence level plus high external excellence is equal to high performance. So now internal excellence level अगर किसी की low है, so how we can improve it, right? हम ये बड़ा कैसे सकते हैं? So there are 3 ways to improve your internal excellence level. First is a bhakti. So bhakti, rational minded people, mostly rational minded people, bhakti is not option for them. Because bhakti is come from the childhood. There is no any course to improve your bhakti power, right? यहाँ पर ऐसे कोई कोर्स नहीं है कि आपकी भक्ति पावर इंप्रूव कर सकते हैं. So for the rational minded people, you can use Raj Yoga and meditation. So through the meditation and yoga, you can improve your internal excellence level. Okay, so डब्बावालाज मोटिवेट कैसे होते हैं? यहाँ पर कुछ हमारे बिलीव्स है. वर्क इज अ वर्कशिप, सर्विंग पीपल इज टू सर्विंग गॉड, अन्नदान इज महादान, आनंद इज महानंद, एंड यूनिटी इज अ पावर एंड टाइम इज अ मनी. सो ये 5,000 लोग 2 लाख डब्बा 4 घंटों के भीतर बिकॉज ऑफ ये 2 वर्ड के वजह से दे पाते हैं. दैट इज टाइम इज मनी एंड यूनिटी इज अ पावर. टाइम इज अ मनी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? टाइम इज मनी मीन्स व्हाट? हमारे डब्बावालाज का कहना है कि आप अगर पैसे के पीछे भागोगे, पैसे कमाने के लिए हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, राइट? बट पैसे आपको कभी हासिल नहीं होंगे. अगर आप टाइम को ही पैसे की तरह देखते हो, टाइम मैनेजमेंट को अगर आप पैसे की तरह देखते हो, तो पैसा अपने आप आपके पीछे चलता आ जाएगा. जितना डेडिकेशन आप अपने पैसे कमाने के लिए, आप अर्निंग के लिए जितना डेडिकेशन लगाते हो, उतना ही डेडिकेशन आपको टाइम मैनेजमेंट में लगाना है, टाइम यूटिलाइजेशन में लगाना है. बिकॉज मुंबई में एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 1 सेकेंड की वजह से अगर किसी की लोकल ट्रेन छूट जाती है तो वहाँ पर उसके 1 दिन के लिए लीव्स लग जाती है, राइट? उनके 1 दिन का हॉलीडे हो जाता है वहाँ पर, तो वो बंदा जॉब पर नहीं जाते. अगर किसी की चीज़ मतलब 1-2 सेकेंड लेट हो जाता है तो बंदे को ट्रेन में जगह भी नहीं मिलती. तो ये 1-1 सेकेंड मुंबई में इंपॉर्टेंट है. सो बिकॉज ऑफ दैट डब्बावालाज को 1-1 सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज डब्बावालाज का जो टाइम पॉलिसी है दैट इज 3 मिनट्स की टाइम पॉलिसी है. 3 मिनट्स वेटिंग पीरियड. 3 मिनट्स मतलब क्या एग्जैक्टली? अगर कोई भी कस्टमर के घर में हम लोग अगर जाते हैं तो डोरबेल बजाने के बाद 3 मिनट से ज़्यादा वेटिंग वहाँ पर होती नहीं. 3 मिनट के भीतर अगर आप डब्बावालाज का हैंड ओवर करते हो तो वो बंदा डब्बा वहाँ से पिक करके निकल जाता है, वरना वो डब्बा पिक नहीं किया जाता है. तो कस्टमर को भी एक टाइम लिमिट सेट किया जाता है कि आपके घर में डब्बावालाज 9 बजे ही शार्प आएगा. तो 9:03 के पहले आपको डब्बा हैंड ओवर डब्बावालाज को करना होता है. तो ये कुछ पॉलिसीज है जो सभी को फॉलो करती है, सभी को फॉलो करना पड़ता है. अगर ये फॉलो नहीं होगा तो डब्बा टाइम पर डिलीवर नहीं होगा. तो सोचिए 130 सालों में आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं है कि एक डब्बा इस बंदे का उस बंदे को डिलीवर किया गया है. आज तक एक भी डब्बा देरी से डिलीवर किया गया. सो यूनिटी इज अ पावर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी हियर. सो अभी तक हमने जो देखा दैट वाज द इंटरनल एक्सेलेंस, इंटरनल पार्ट. सो सी एक्सटर्नल पार्ट कि 5,000 लोग ये 2 लाख डब्बास कैसे डिलीवर कर पाते हैं विदाउट पेपर, विदाउट टेक्नोलॉजी एंड विदाउट एनी प्लास्टिक. सो हियर इज अ 2 स्ट्रक्चर हियर, कोडिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो. कोडिंग सिस्टम मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? हम किसी भी कंपनी से, ई कॉमर्स कंपनी से जब कुछ भी पार्सल ऑर्डर करते हैं तो पार्सल ऑर्डर करने के बाद हम लोग हमारे घर में जब पार्सल आता है तो यू कैन सी हियर सो QR कोड और बारकोड कोड विल बी देयर, राइट? सो QR कोड और बारकोड कोड आफ्टर द स्कैनिंग इट बाय द स्कैनर, आफ्टर दैट वी विल नो वेयर इज टू बी डिलीवर्ड, ये कहाँ डिलीवर करना है. सो सेम एज दैट डब्बावालाज का कोडिंग सिस्टम भी यहाँ पर जनरेट किया गया है. यू कैन सी हियर. एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो दैट मीन्स सप्लाई चेन. सो दिस इज अ कोडिंग सिस्टम. तो यहाँ पर कोई बारकोड कोड और QR कोड नहीं है, राइट? सो कैन एनीवन वांट टू ट्राई व्हाट एग्जैक्टली वी हैव एडेड हियर? हाउ डब्बावालाज स्कैन इट. डब्बावालाज ये कोड को कैसे पहचान पाते हैं? सो विद इन सेकेंड ये आपको करना होता है. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली वी हैव एडेड हियर? देयर आर ओनली 4 कोड EVLP 39X12.
Okay, green for pickup address and red for delivery. Okay, good try. Sir. Yes. VLP stand for Ville Parle, right? VLP stand for Ville Parle. E stand for East. Okay. From back side. So ऐसे कुछ है क्या 9 बजे पिकअप करके 12 बजे डिलीवर करना, टाइम इज हियर, या फिर 3 नंबर का प्लेटफॉर्म विले पार्ले का, राइट? ऐसे कुछ हो सकता है. सो यहाँ पर कैसे डब्बा वालों आइडेंटिफाई करते हो क्या? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज यहाँ पर ओनली 4 कोड है, राइट? 9 VLP 3 9x12, राइट? E3 9x12. तो यहाँ पर विद द 4 कोड प्रोबेबली वी कैन नॉट मेक 2 लाख कोड्स, राइट? 2 लाख कोड हम नहीं जनरेट कर पाते हैं. नॉर्मली 2 डाइज अगर फेंकते हैं तो 36 प्रोबेबिलिटीज आती है. तो यहाँ पर तो 4 कोड है, 4 कोड के साथ 2 लाख कोड नहीं बनाए जा सकते. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग कलर कॉम्बिनेशंस, अल्फाबेट्स, नंबर्स, languages also we are using Marathi, English, Roman language also we are using, signs also we are using, plus, minus, hashtag, each and everything, multiple signs, multiple numbers, multiple languages we are using to generate the code system. So यहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है, आप सोच भी नहीं पाओगे. अगर वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हम एक A4 साइज पेपर पर ऐड करते हैं तो पूरा A4 साइज पेपर भर जाएगा. इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये कोड सिस्टम में ऐड की गई है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ये कोड में एग्जैक्टली क्या क्या ऐड किया गया है ये हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं. यहाँ पर ये डब्बा किस स्टेशन से पिक किया जाएगा, वो स्टेशन का नाम इस कोड में ऐड किया गया है. ये डब्बा वो स्टेशन से ईस्ट या वेस्ट से पिकअप किया जाएगा, ये भी इसमें ऐड किया गया है. वो स्टेशन पे डब्बा वाला कौन सा डब्बा वाला है, विच डब्बा वाला विल पिक दिस लंच बॉक्स फ्रॉम दिस स्टेशन, द नेम ऑफ द डब्बा वाला इज हियर. आफ्टर दैट द डेस्टिनेशन स्टेशन, ये डब्बा किस स्टेशन को जाके डिलीवर किया जाएगा, द डेस्टिनेशन कोड इज ऑल्सो हियर. सो आफ्टर रीचिंग एट डेस्टिनेशन स्टेशन पर आने के बाद अगेन विच डब्बा वाला विल पिक दिस लंच बॉक्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन स्टेशन, द नेम ऑफ द डब्बा वाला इज ऑल्सो हियर. और वो डब्बा डेस्टिनेशन स्टेशन से पिक करके किस बिल्डिंग में जाके ये डब्बा डिलीवर करेगा, उस बिल्डिंग का नाम भी इस कोड में दिया गया है. और फाइनली ये डब्बा उस बिल्डिंग के किस फ्लोर पर डिलीवर किया जाएगा, वो फ्लोर कोड भी इसमें दिया गया है. कैन इमेजिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ 4 कोड में ही कंप्रेस की गई है. सी नॉर्मली you can see here VLP stand for Ville Parle. So VLP is a pickup point. Why it's a pickup point? Because it's wrote on the top. So top address always be a pick point for dabba walas. You can see in the center is the 3 number. So center code always be a destination code. So ये lunch box Ville Parle से pick करने के बाद चर्च गेट में डिलीवर किया जाएगा. So Ville Parle to चर्च गेट it's around 18 to 20 किलोमीटर. So ये लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया जाएगा. सो विले पार्ले से किस एरिया से इसे पिकअप किया जाएगा, ये विले पार्ले के वेस्ट से पिकअप किया जाएगा, बिकॉज VLP इज हियर. अगर ये VP होता, ओनली VP स्टैंड फॉर विले पार्ले ईस्ट एंड VLP स्टैंड फॉर विले पार्ले वेस्ट. सो ये विले पार्ले ईस्ट वेस्ट से ये डब्बा पिक किया जाएगा ग्रुप नंबर 2 से. ग्रुप नंबर 2 से क्यों? बिकॉज ग्रीन एंड रेड कलर इज हियर. सो मोस्टली ग्रीन एंड रेड कलर, दिस इज आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ सेकेंड ग्रुप, एंड येलो एंड रेड दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. Yellow and red this is the first group, green and red is the second group. So Ville Parle West के second group के E नाम का बंदा, E मतलब ईश्वर होगा. So ईश्वर ये डब्बा मॉर्निंग में पिक करेगा और ये विले पार्ले स्टेशन पर लाके रख देगा. विले पार्ले स्टेशन पर आने के बाद ये डब्बा अकॉर्डिंग टू द सेंटर कोड, अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन कोड इसे शॉर्ट आउट किया जाएगा और फाइनली इसे डेस्टिनेशन स्टेशन पर भेजा जाएगा. डेस्टिनेशन स्टेशन पर आने के बाद Mr. 9 will pick this lunch box from Churchgate station and he will deliver this lunch box in Express Tower building on 12th floor. So it's simple, right? It's simple. Actually, this is not simple. If you want to identify the coding system, you will need more than 3 to 4 months training to identify only coding system. अगर आपको पूरी कोडिंग सिस्टम जाननी है तो 3 से 4 महीने लग जा सकते हैं सिर्फ कोडिंग सिस्टम जानने में. Why? You can see here. See, I told you VP stand for Ville Parle East and VLP stand for Ville Parle West. So VP with yellow and red, this is the first group of Ville Parle East. So VP with green and red, that's the second group, right? So ये लंच बॉक्स घाट के ऊपर से पिक करके दादर में डिलीवर किया जाएगा पेनिनसुला टावर के 9th फ्लोर पर.
सो ये लंच बॉक्स बोरोली से ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द चर्च गेट एंड दिस लंच बॉक्स विल ट्रैवल फ्रॉम मालाड टू चर्च गेट. कुछ डिफरेंस मिला आपको यहाँ पर? So 3 number for Churchgate and 6 number also for the Churchgate, right? So 1 to 10 number allotted for Churchgate because Churchgate is a very big area. So कुलाबा है, कफ परेड है, वहाँ पर अलग अलग एरिया से और अलग अलग एरियाज के अलग अलग कोर्स यहाँ पर डिज़ाइन किए गए. सो यहाँ पर एक क्विज है. अगर लंच बॉक्स देखिए दादर, दहीसर, देवनार, डोंबिवली, दादर, दहीसर, देवनार, डोंबिवली, इनके कोड कैसे हो गए? सबका सब स्पेलिंग डी से स्टार्ट होता है. तो लंच बॉक्स किस स्टेशन से कैसे और कौन पिकअप करेगा ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, राइट? सो सी, अगर डी टॉप में ऐड करते हैं, अगर डी हम टॉप में ऐड करते हैं तो ये लंच बॉक्स दहीसर से पिकअप किया जाएगा. सी हियर, अगर डी हम टॉप में ऐड करते हैं तो ये लंच बॉक्स दहीसर से पिक किया जाएगा. अगर वही डी हम डाउन में, नीचे बॉटम में अगर उसे ऐड करते हैं तो ये लंच बॉक्स दादर से पिक किया जाएगा. टॉप में होगा तो दहीसर, नीचे होगा तो दादर. अगर वही डी 2 टाइम्स टॉप में भी और बॉटम में भी 2 टाइम उसे ऐड करते हैं तो ये लंच बॉक्स पिक किया जाएगा देवनार से, सॉरी डोंबिवली से. ये लंच बॉक्स पिक किया जाएगा डोंबिवली से अगर ये डी 2 टाइम्स होगा तो. अगर डी सिंगली नीचे एक ही बार होगा, डाउन में बॉटम में अगर एक बार होगा, बट जो पिकअप करने वाला बंदा है ई, उसका नाम अगर टॉप में और लेफ्ट में 2 टाइम्स होगा तो ये लंच बॉक्स देवनार से पिकअप किया जाएगा. सो अगर यहाँ पर आप सोचिए, अगर डी ऊपर भी है, नीचे भी है और साइड में भी डी आ गया तो वो लंच बॉक्स कहाँ से और कौन पिकअप करेगा? 3 बार डी आ गया तीनों साइड में तो ये लंच बॉक्स कहाँ से पिकअप होगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड 3 to 4 months training to identify this code system. Okay, so now we can see here this is the distribution flow, supply chain management. So I'm very happy to say that Dabbawalas are the founder of hub and spokes model. Hub and spokes model जो हर एक कंपनी, कुरियर कंपनी, ई-कॉमर्स कंपनी जो आज यूज करती है जो मॉड्यूल, उसी के फाउंडर डब्बावालास को माना जाता है एज पर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. उनका कहना है कि डब्बावालास हब एंड स्पोक सिस्टम के फाउंडर है. सो हब एंड स्पोक सिस्टम मतलब क्या एग्जैक्टली कि मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं, वहाँ से जाके पिक करके एक हब पर लेके आना, हब टू हब ट्रांजैक्शन, एक हब से दूसरे हब तक भेजना, वहाँ पर हब में जाने के बाद अगेन उसे अलग अलग एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना. सो दिस इज अ बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल. सो सेम डब्बावालास भी उसे फॉलो करते हैं. सो एक्चुअली फॉर वन ट्रांजैक्शन वी नीड 3 people. You can see here, starting point we can take an example of Ville Parle. So Ville Parle is a starting point and then Churchgate is a destination station. So middle arrow is a local train. So Dabba will travel from Ville Parle to Churchgate and 1 to 7 these are the Dabbawalas at the Churchgate station. They will pick lunch boxes from the Churchgate station for the final delivery. And see here A, B, C, D, E these are the Dabbawalas on Ville Parle station. So Ville Parle station के कुछ Dabbawalas वो लंच बॉक्स पिक करके शॉर्टिंग एरियाज में आएंगे. वहाँ पर शॉर्टिंग करने के बाद वो लंच बॉक्स टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन स्टेशन थ्रू द लोकल ट्रेन उसे भेजा जाएगा. लोकल स्टेशन मतलब चर्चगेट में आने के बाद अगेन वो लंच बॉक्स एज पर द डब्बावाला कोड 1 2 3 4 5 7 एज पर द डब्बावाला कोड उसे शॉर्टिंग किया जाएगा और फाइनली वो लंच बॉक्स अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग कोड उसे डिलीवर किया जाएगा उनके एड्रेसेस पर. यू कैन सी हियर फ्रॉम होम टू द शॉर्टिंग पॉइंट, फ्रॉम होम टू द विले पार्ले स्टेशन एक बंदा ये डब्बा पिक करेगा. फ्रॉम विले पार्ले टू चर्चगेट स्टेशन इसे ट्रैवल करेगा दूसरा बंदा लेके, मतलब दूसरा ही बंदा इसे ट्रैवल करेगा. और फाइनली चर्चगेट से लेके फाइनल ऑफिस के डिलीवरी तक यहाँ पर तीसरा बंदा हमें लगता है. तो एक डब्बा डिलीवर करने के लिए मोस्टली 3 लोग लगते हैं और ये हमारी है फर्स्ट पार्ट. ऐसे हमारे टोटल 7 to 8 पार्ट्स है सप्लाई चेन के, जो हमने पहले 14 पार्ट से अभी थोड़े कंप्रेस करके 7 to 8 कर दिए. सो फर्स्ट पार्ट में हमें 3 लोग लग जाते हैं एक डब्बा डिलीवर करने के लिए. और जो हमारे 5 to 7 जो पार्ट है, मतलब जो लास्ट के 3 पार्ट है, उसमें मोस्टली हमें 7 to 8 डब्बावालास की ज़रूरत लगती है, 78 डब्बावालास को. और यहाँ पर डब्बा अगर देखिए, अगर मुझे डब्बा डोंबिवली से बोरोली भेजना है सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज 3 लोकल रूट को ट्रैवल करके वहाँ पर भेजना होता है विद इन 2 hours. अगर 2 hours ट्रैवलिंग नहीं करेगा तो वो डब्बा डिलीवर नहीं हो जाएगा. सो सोचिए कुछ डब्बा ऐसे भी होते हैं जो ट्रेन में ही शॉर्ट आउट किए जाते हैं. ट्रेन में अगर सेम ट्रेन सेम डब्बा वाला ने अगर नहीं कैच किया, नहीं बोर्ड किया, तो चांसेस ऑफ द डिलीवरी इज टोटली 0, राइट?
अगर वही ट्रेन सेम डब्बा वाला ने सेम ट्रेन अगर नहीं बोर्ड की तो उसके चांसेस होते हैं 0%, राइट? तो आज तक अभी तक ऐसे कभी हुआ नहीं है, बिकॉज डब्बा वाला ने उनकी टाइम मैनेजमेंट पॉलिसी इतनी जबरदस्त बना के रखी है कि वो टाइम में जो लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं उसमें से 1 आवर्स उन्होंने इमरजेंसी टाइम के लिए रखा है, इमरजेंसी पीरियड के लिए। अगर बाढ़ आ जाती है, ट्रेन स्टॉप हो जाती है, अगर कोई डब्बा वाला से एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई डिले हो जाता है, तो वो 1 आवर का यूज यहाँ पर किया जाता है। लेट्स सी ये कैसे होता है। सी वर्किंग टाइम इज 9 to 6 एंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल। Price. How much we are charging from our customer? See, we are giving 2 transactions for you in a 1 day. Even the courier companies, they are charging 70 to 80 rupees for your 30 gram envelope. अगर 30 ग्राम का envelope मुंबई में आपको अगर भेजना है same day, so they are charging 300 rupees. If you are sending it for tomorrow, अगर 2 दिन का traveling period अगर आप रखते हो, so they are charging 60 to 70 rupees. So सोचिए डब्बा वाला they are carrying your 1 kg lunch box and they are giving 2 transactions in a 1 day, then how much dabbawalas are charging from their customer? Can anyone guess how much we are charging from our customer? No one? तो सोचिए ये कंपनी ही आपकी है, डब्बा वाला ही आपका है, तो एज अ मैनेजर आप कितना चार्ज करोगे? 3000 फॉर मंथली। ओके, अच्छा यहां पर किसी को मैनेजर बनना नहीं है शायद से। If you are a manager of Dabbawalas, then how much you are charging from your customer? 3000 he said. From this side? How much? 2000. 9000. 9000 it's a very high price because mostly मुंबई में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी 12,000, 13,000, 15,000 से स्टार्ट होती है। तो 9000 अगर वो डिलीवरी बॉय को दे देगा तो खाएगा क्या? It's a depend on the distance and weight of the lunch box. It's totally dependent, but we are charging very ideal price from all. So how much is it? 5,000? 500 rupees to 1,000 rupees. Okay, good answer. Okay, let's see कि डब्बा वाला की प्राइसिंग पॉलिसी एग्जैक्टली वर्किंग कैसे करती है। ओके, डब्बा वाला की प्राइसिंग पॉलिसी उनके कस्टमर बेस के ऊपर ही डिपेंड है। वी हैव वेरी स्मॉल कस्टमर्स आल्सो, बिकॉज स्मॉल कस्टमर भी हमारे पास कुल स्कूल्स में जाते हैं। हमारी जो कस्टमर बेस है इट्स नॉट सेम, स्मॉल कस्टमर्स, स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो आर कस्टमर एंड बिग CEO एंड मैनेजर्स आल्सो आर कस्टमर। सो big managers and CEO they can pay more than 5,000 rupees for delivery, but the small children's, watchmen's, drivers they cannot pay, right? वो लोग तो नहीं दे पाएंगे 5,000 से ज़्यादा। But see, customer is a God for us, so there is no any differentiation between the God, poor God and rich God, right? So we should charge one ideal price from all, right? हमें एक ही प्राइस हमारे कस्टमर हमारे गॉड से चार्ज करनी होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट सभी कैटेगरीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी है इट्स वेरी 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 चिप, एकदम चिप, मतलब इतनी सस्ती है कि कोई भी कॉम्पिटिटर आज तक वो प्राइस से दे नहीं पा रहा है और कोई भी कॉम्पिटिशन आज तक डब्बा वाला उसको मिली नहीं है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी। सो इट्स ओनली 30 rupees पर डे, 15 rupees फॉर योर वन ट्रांजेक्शन, 30 rupees पर डे एंड 900 rupees फॉर अ मंथ। सो 30 rupees में 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर का ट्रांजैक्शन हो जाता है, 70 किलोमीटर का ट्रैवल हो जाता है ओनली 30 rupees में। ओके, सो लेट्स सी एक्चुअली what is the time policy? See, 8:30 to 9 o'clock this is a pray time for God. Mostly डब्बा वाला प्रे करते हैं। So we have very less time right now. You can see here from 9 to 10:30 is our pickup time from the residence. Then 10:30 to 11:30 is the journey time. 11:30 to 12 o'clock is a shorting time at the Churchgate station. And finally from 12 to 1 o'clock is a final delivery at the customer, at the offices. Okay. Yeah. See, this is the major features of our supply chain. 0% fuel, 0% local train, use of local train for long distance, 0% plastic, 0% paper, 0% modern technology, 0% investment, and 100% customer satisfaction. Because customer is a God for us, and customer 100% they are satisfied here. So these are the unknown fact about the Dabbawalas. Our error rate, that is 1 in a 6 million transaction.
1 in a 6 million transaction. Can you imagine? अगर ये 6 sigma है, तो 6 sigma that means 1 error in 1 million transaction. But we are doing 1 error in 6 million transaction. So it's better than 6 sigma. So our performance level is 99.99997%. अगर ये performance level होगी, so why should we use technology here? Right? Why we should use? लोग हमें कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करो. अगर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमारी ये डिफेक्ट लेवल बढ़ जाएगी और हमारी परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाएगी. सो विदाउट पेपर विदाउट प्लास्टिक हमारी परफॉर्मेंस लेवल 99.997% है. सो नो स्ट्राइक रिकॉर्ड. नो स्ट्राइक मतलब आज तक किसी भी डब्बावालाज ने उनके इनके वेजेस को लेके, उनके पगार को लेके आज तक कभी भी किसी टाइप का भी स्ट्राइक नहीं किया है. एंड यू कैन सी हियर नो रेजिग्नेशन. No resignation, so there is no any manager, no directors, right? So no directors, no manager, that means no instruction. No instruction, that means no frustration, no tension, right? So no frustration, no tension because of there is no any resignation. You can see here, this is the recruitment process of Dabbawalas. I will explain further. And ये 130 सालों में ये डब्बावालास की सिस्टम मुंबई में चलती आ रही थी. तो ये सिस्टम को जानने के लिए Prince Charles, the King of London, he sent the proposal to meeting with the Dabbawalas. So Mr. Jain was the coordinator to finalize the meeting with the Dabbawalas. So he came down in Mumbai and he said to Dabbawalas, "Sir, can you please?" Sorry, he said, "Mr. Prince Charles want to meet you. You have to come in this office on this date." Our Dabbawalas said, "Who is the Prince Charles? We don't know." Who is the Prince Charles? We don't know. Mr. Jain said, "He is a great King of London." So our Dabbawalas said, "So what? So what? Our customer is a greater king. If your king want to meet us, then he has to come in our given time in our place." So meeting was finalized on 4th November 2003 on food part of Churchgate. ये मीटिंग हो गई फाइनल फूड पार्ट के चर्चगेट के फूड पार्ट के ऊपर only for 10 minutes. डब्बावालास ने यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया कि 10 मिनट के भीतर अगर वो नहीं आते 11:30 से लेके 11:40 के बीच में, ये 10 मिनट हम उनके लिए दे सकते हैं. अगर वो 10 मिनट में नहीं आते तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे. So meeting was finalized on the 3rd November, and after that we got this achievement without application, free of cost. We got it ISO certificate without any application. So World Amazing Record, Limca Book of Record, then Guinness Book of Record, Iconic Achiever of 2018, Quality Assurance. ऐसे हमारे डब्बावालास के पास more than 7,000 certificates है. 7,000 certificates we have, and more than 60 to 70 awards भी डब्बावालास को मिले हैं. Then, see, in 2010, our Maharashtra government they gave chance to Dabbawalas to represent our Maharashtrian culture in front of Delhi. So 2010 में on Republican Day डब्बावालास ने ये मैनेजमेंट किया था. सो बीबीसी, आज तक, CNBC, ऐसे हजारों चैनल्स है, हजारों न्यूज चैनल्स है, हजारों केस स्टडीज है जो डब्बावालास के ऊपर आज बनी है. सो रिचर्ड ब्रांसन, ही इज द सेकंड रॉयल विजिट टू डब्बावालास. ही ट्रैवल along with the डब्बावालास for 2 days. You can see he is holding his own lunch box with him. So he delivered this lunch box to his employees in Mumbai. Then third royal visit, Maxima, Queen of Netherlands. She was also meet us in 2018 on foot of on the Andheri station. So there are more than 200 Dabbawalas are working at the time. So because of that, she chose this station. Then we Dabbawalas also do CSR activities because serving people means not only our customer, हर एक लोगों को मदद करना है. सो केरला में जब फ्लड आया था तो एवरी डब्बावालास ने कलेक्टेड 20 rupees फ्रॉम एवरी डब्बावालास. सो 20 into 5,000, so we donated 1 lakh rupees to them. Then Roti Bank, we have a Roti Bank. Roti Bank means a food bank. If you have leftover food, don't throw it, just call to Dabbawalas. Dabbawala, they will come there with the van. They will collect your leftover food from your place and they will donate it to the poor people. So this is the concept of Roti Bank. And second one, that is the lunch with the hungry children once in a week. So ये जो concept है ये हमारा सबसे ज़्यादा popular concept है. यहाँ पर ऐसे है कि जो डब्बावालास, ज़्यादातर लोग डब्बावालास लोकल के ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं. सो वो तो ट्रैवलिंग के समय वहाँ पर जब डब्बावालास रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जब खाना खाने बैठते हैं तो कुछ बंदे भी, जो कुछ लोग भी, कुछ बच्चे भी वहाँ पर आते हैं. तो उन बच्चों को भी घर का खाना मिलना चाहिए. इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रेसिडेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हर एक डब्बा वाला वीक में एक बार एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स कैरी करेगा और वो एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स उन बच्चों के लिए वो डोनेट कर देंगे. सो इसी तरह से
शेयर माई डब्बा, ये हमारा कंसेप्ट है. यू कैन सी हियर विद द वीडियो. साउंड प्लीज. सो मोस्टली ये जो हमारी कंसेप्ट है ये स्पेशली हमारे कस्टमर के लिए डिजाइन की, बिकॉज कस्टमर का कहना ऐसे था कि आप लोगों के लिए इतना कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ करो, बिकॉज वी हैव ऑल्सो लेफ्ट और फूड इन आवर लंच बॉक्स. बिकॉज हमारी वाइफ हमारे लिए इतना खाना भेज देती है कि हमें वो खत्म ही नहीं हो जाता. तो हमारे कस्टमर को हमने एक ही रिक्वेस्ट किया था कि आपको अगर खाना डोनेट करना है तो आपको पहले ही उसे साइड में रखना है और बाद में आप उसको डोनेट कर सकते हैं. सो वी प्रोवाइड 2 स्टिकर टू आवर कस्टमर. 2 स्टिकर, वन इज अ ग्रीन, वन इज अ रेड. सो ग्रीन फॉर वेज एंड रेड फॉर नॉन वेज. सो जैसे स्टिकर कस्टमर लगाते हैं तो स्टिकर लगाने के बाद डब्बा वाला को पता चल जाता है कि उसके अंदर लंच है, तो वो लंच फाइनली उन बच्चों के लिए दिया जाता है. सो आई थिंक इट्स नॉट साउंडिंग हियर, सो वी टेक फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द लेस टाइम. सो इन कोविड-19 के वजह से 130 सालों में कोई भी प्रॉब्लम डब्बा वाला को स्टॉप नहीं कर चुकी थी, बट कोविड के वजह से डब्बा वाला की सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी. 2020 में, मतलब 18 मार्च को ही डब्बा वाला की सर्विस बंद हो चुकी थी. 18 मार्च के बाद आज तक डब्बा वाला की फुल फोर्स से काम नहीं हो रहा है. 18 मार्च से पहले टोटल 5000 डब्बा वाला काम करते थे, बट आज के दायरे में सेकेंड लॉकडाउन की वजह से आज तकरीबन 500 से लेके 600 डब्बा वाला ही मुंबई में काम कर रहे हैं. और जो बचे हुए डब्बा वाला है उनको डाइवर्सिफाई किया गया है अदर मतलब अलग अलग जॉब्स में, लाइक MIDCs में, या फिर कोई डब्बा वाला ने खुद की स्टार्टअप्स किए हैं एज अ वेजिटेबल सेलर. मतलब अलग अलग जगहों पर उनको डाइवर्सिफाई किया गया है. कुछ संस्था ने, कुछ एसोसिएशंस ने, कुछ ट्रस्ट ने डब्बा वाला को कोविड-19 में हेल्प की. और मोस्टली डब्बा वाला की ये जो साइकिल की रैक थी, आज डब्बा वाला की जितनी भी असेट्स थी, साइकिल्स, हैंड कार्स, टोटली पूरी तरह से खराब हो चुकी थी. बिकॉज 1.5 साल से उन साइकिल्स को कोई चलाने वाला मुंबई में नहीं था, और उसी के दायरे में पूरी तरह से असेट्स खराब होने के बाद आज डब्बा वाला रीस्टार्ट करने के लिए जा रहा है. और वी आर नाउ डाइवर्सिफाइंग आवर बिजनेस. सो वी आर एंटरिंग इनटू द फूड इंडस्ट्री. सो पहले डब्बा वाला खुद, मतलब पहले डब्बा वाला सिर्फ लंच डिलीवर करने का काम करते थे, ओनली डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे. बट अभी डब्बा वाला खुद खाना बनाएंगे और डब्बा वाला अपने कस्टमर को देने के लिए ट्राई करेंगे. सो दिस इज अ सेंट्रल किचन कंसेप्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग विद इन द 2 months. It's not working. So thank you so much. I think hope you all enjoy this session. So now if you have any questions then you can ask. Check. Yeah. So, my father is also from Bombay, and first of all, thank you, because for 20 years he could have lunch from through Dabba Walas. And I know it's a little tricky question, but then Dabba Walas has been doing this for years. Do these new e-commerce giants, Zomato, Swiggy genies, do they feel challenging? What they are doing and what also Swiggy genie is trying to do? That's my first question. And my second question is that if I have to make a film on Dabba Walas, whose IP I should contact? Swiggy, Zomato, and companies. So they are providing their services in between 5 kilometers only. So our target is to cover all over Mumbai. So this is the first main important thing. And second one, that is their concept is very unique. Their concept is very totally different, because they are delivering your food from the restaurants. So people, they are ordering the food one time only. वो एक ही बार ऑर्डर करते हैं, उसके बाद ऑर्डर नहीं करते. बट हमारे जो कस्टमर बेस है, वो लंच ऑर्डर करते हैं उनके घरों से या फिर किसी कम्युनिटी किचन से. तो स्विगी एंड जोमेटो जैसे अदर कंपनीज भी उन्होंने सेंट्रल किचन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था मुंबई में, बट उनके कंपनीज के ऊपर का जो ट्रस्ट है वो कुछ हद तक डाउन है. तो डाउन के वजह से उनका सेंट्रल किचन का कंसेप्ट मुंबई में पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है. सो उसी के बेस पर आज डब्बा वाला की जो
गुडविल है, वो गुडविल के ऊपर आज डब्बावालास को मतलब लोगों का जैसे कहना था कि डब्बावालास दे आर द फूड डिलीवरी कंपनी. सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस एंड विद इन वन ईयर स्विगी और जोमेटो आपको मुंबई में नहीं दिखेंगे. दैट्स इट.